سب سے پہلے لاک ڈاؤن کے حوالے سے بات کریں گے۔ فیصل آباد میں لاک ڈاؤن کا معاملہ 1 جولائی سے مارکیٹس مشروط طور پر کھولنے پر غور۔ تاجر تنظیمیں مارکیٹس میں ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے حلف نامے جمع کرائیں گے۔ خلاف ورزی کی صورت میں عید تک مارکیٹس بند کر دی جائیں گی۔ فیصل آباد میں لاک ڈاؤن کے معاملے کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں تو 1 جولائی سے مارکیٹس مشروط طور پر کھولنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ تاجر تنظیمیں مارکیٹس میں ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے حلف نامے جمع کروائیں گی۔ کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے فیصل آباد میں 18 جون کو لاک ڈاؤن لگایا گیا تھا۔ مدت پوری ہونے پر 1 جولائی سے مارکیٹس مشروط طور پر کھولی جائیں گی۔ ایک تو وہ ایشورنس انہوں نے ہمیں دی ہے، جہاں جہاں پر ہم دیکھیں گے کہ وہ ایس او پیز کو فالو کرنے کے لیے مناسب انتظامات کر رہے ہیں، وہاں ہم کھولیں گے۔ انتظامیہ کے مطابق تاجر تنظیمیں مارکیٹس میں ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے حلف نامے جمع کروائیں گی۔ 3 روز کے لیے مارکیٹس کھلیں گی۔ صرف ان تاجروں کو کاروبار کی اجازت ہوگی جو ایس او پیز پر عمل درآمد کریں گے۔ خلاف ورزی کی صورت میں مارکیٹس بند کر دی جائیں گی۔ 3 دن کے لیے ان کو فی الحال اجازت دے رہے ہیں، اور ان 3 دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ اگر وہ ایس او پیز کو اسٹرکٹلی فالو کر رہے ہیں تو پھر ہم ان کو پرماننٹلی اجازت دے دیں گے، ورنہ اس کے بعد پھر ہم پروونشل گورنمنٹ کو پھر یہ ریکمینڈ کریں گے کہ اس میں پارشلی جہاں جہاں وائلیشنز ہو رہی ہیں ان کو ہم بند کر دیں۔ تاجر تجاوزات ہٹا کر دکانوں کے اندر ہی کاروبار کرنے کے پابند ہوں گے۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ محمد رمضان مرزا، فیصل آباد۔ فیصل آباد میں لاک ڈاؤن کھولنے کے لیے ضروری اقدامات پر کام شروع۔ گھنٹہ گھر کو وہیکل فری کیا جائے گا۔ 8 بازاروں کے اطراف میں 5 جگہوں پر پارکنگ ہوگی۔ کاروبار دکان کے اندر ہی ہوگا۔ ڈپٹی کمشنر کا زیرو ٹالرنس کا اعلان۔ جی بالکل، آپ کو بتائیں کہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ کھولا ضرور جائے گا، لیکن ایس او پیز کے ساتھ ضروری اقدامات پر کام شروع کر دیا گیا ہے۔ گھنٹہ گھر کو وہیکل فری کیا جائے گا۔ 8 بازاروں کے اطراف میں 5 جگہوں پر پارکنگ ہوگی۔ کاروبار دکان کے اندر ہی ہوگا۔ گھنٹہ گھر کے 8 بازاروں سے پارکنگ ختم کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے گھنٹہ گھر کو وہیکل فری کیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی کے مطابق 8 بازاروں کے اطراف میں 5 جگہوں پر پارکنگ ہوگی۔ 8 بازار میں انکروچمنٹس اور ایلیگل پارکنگ جو ہے وہ بہت زیادہ تھی، تو پارکنگ کے لیے ہم نے 5 آئیڈینٹیفائی جگہیں کر لی ہیں، وہاں پر اب پارکنگ ہوا کرے گی۔ اور دوسرا جو کام ہوگا وہ شٹر سے اندر ہوگا، شٹر سے باہر ہم کسی کو کسی قسم کی کوئی اجازت نہیں دیں گے۔ اس مقصد کے تحت پارکنگ کے لیے دھوبی گھاٹ گراؤنڈ اور ایم سی ہائی اسکول کے گراؤنڈز استعمال ہوں گے۔ لنڈا بازار راجپا روڈ پر ریلوے راضی اور بیرون کارخانہ بازار کو پارکنگ کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ ان جگہوں پر 15,000 موٹر سائیکل اور 800 سے زائد گاڑیوں کی گنجائش ہوگی۔ دوسری جانب اے سی صدر عمر مقبول نے بھی تاجروں کو اعتماد میں لیتے ہوئے بازار کھولنے کی نوید سنا دی۔ اپنا سٹاف اتنا ہی جتنی دکان ہے اس کے مطابق کریں گے، اور جو ہے وہاں پہ کوئی ایکسٹرا رش نہیں کریں گے، اور جو انہوں نے فرنٹ کے اوپر جو انکروچمنٹ کی ہے اس کو بھی ختم کریں گے، تاکہ جو ہے لوگوں کی ڈسٹینسنگ بھی انشور ہو۔ تو یہی جو ہے ڈی صاحب سے جو ہے کل انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ یہ میٹنگز کریں، تو میٹنگ ہوگی انشاءاللہ، جو بھی گورنمنٹ فیصلہ کرے گی اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوگی۔ تحصیل صدر کے علاقوں میں بھی تجارتی سرگرمیوں کو ایس او پیز کے تحت چلایا جائے گا۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ محمد رمضان مرزا، فیصل آباد۔ اگر حالات ایسے ہی رہے تو تاجر کورونا سے نہیں بھوک سے مر جائیں گے۔ گھروں میں فاقے ہیں، حکومت مدد نہیں کر رہی۔ فیصل آباد انجمن تاجران سٹی رجسٹرڈ نے گھنٹہ گھر کے 8 بازاروں کو فوری کھولنے کا مطالبہ کر دیا۔ انجمن تاجران کی جانب سے ہنگامہ اجلاس بلایا گیا جس میں 8 بازاروں کے عہدیداروں نے شرکت کی۔ انجمن تاجران سٹی رجسٹرڈ کے صدر خواجہ شاہد رزاق نے کہا کہ اگر شہر کھولنا ہے تو پورا شہر کھولا جائے، ورنہ تاجر اپنے مزدوروں کو فارغ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ سیف آباد میں گندے نالے کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ پانی داخل ہونے سے 10 گھروں کو زیادہ نقصان پہنچا۔ چھتیں گرنے کا خدشہ ہے، شہری خوف میں مبتلا ہیں۔ سیوریج کا پانی روکنا کس ادارے کی ذمہ داری ہے؟ واسا اور لوکل گورنمنٹ ملبہ ایک دوسرے پر ڈالنے لگے۔ یہ ہے سیف آباد کا رہائشی علاقہ، جہاں رہائشی جگہ پر بنایا گیا برساتی نالا جو کہ گندے نالے میں تبدیل ہو چکا ہے، جس نے گھر کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی۔ گندے نالے کا پانی گھروں میں داخل ہونے سے گھروں کی بنیادیں بیٹھ گئیں، جس سے شہری پریشان دکھائی دیے۔ شہریوں کا کہنا ہے حکام بالا کو متعدد بار اطلاع دی گئی، لیکن اس کے باوجود واسا حکام یا لوکل گورنمنٹ کے کسی اہلکار نے یہاں آنے کی زحمت نہیں کی۔ متاثرہ گھروں میں مٹی ڈال کر پانی کو بند باندھنے کی کوشش کی گئی، لیکن بے سود ثابت ہوئی۔ جب کا یہ کھالا بنا ہے تب کا یہ مسائل ہے، تو کافی دفعہ ان کو وارننگ دی تھی۔ ہمارے گھر کے جو سے پمپ بور وغیرہ ہیں وہ بھی بیٹھ گئے تھے، ان کو وارننگ کی، دیکھ کر چلے گئے، کہتے کوئی بات نہیں۔ ان پہ جتنے بھی سیاستدان ہیں ان پہ جوں بھی نہیں رینگی۔
शहरियों का कहना है आज के मुश्किल वक्त में गरीब लोगों के लिए घर बनाना कितना मुश्किल है। उनका मजीद कहना था अगर घरों की छतें गिर जाती हैं तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। लोकल गवर्नमेंट और वासा हुकाम की जानिब से कोई भी इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। ऑफिस भी गए हैं तो वहाँ पर भी किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया और हम लोग वासा के बार बार कॉल कर रहे हैं, उन लोगों ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। जब तक ये नाला बंद ना हुआ हम लोग इसको कवर नहीं कर सकते। हमारी घरों की बुनियादें जो है ना वो सारी गिर गई हैं और जो छतें हैं ना वो भी गिरने का खदशा है। छोटे छोटे बच्चे हमारे घरों में फिर रहे हैं। करते हैं कुछ, हम करते हैं कुछ, लेकिन अभी तक कुछ नज़र नहीं आया हमें। बस यही नज़र आ रहा हमारे घर तो जो तबाह हो रहे हैं। हम मजदूर आदमी हैं, हम बच्चों को पेट पालें या हम घर संभालें। घरों की छतें गिर गई तो कौन जिम्मेदार है। लोकल गवर्नमेंट और वासा हुकाम जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। अपने मसाइल लेकर कहां जाएं, शहरियों ने सवाल उठा दिए। कैमरामैन शाहजेब के साथ शाहदा परवीन, फैसलाबाद। बारिश के बाद की ही सूरत हाल की बात करें। सुबह सवेरे होने वाली मूसलाधार बारिश ने वासा की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। लारी अड्डा, तारिकाबाद, जड़ावाला रोड और दीगर शाहराहों पर पानी जमा हो गया। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शाहिदा परवीन की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश ने जहां मौसम ठंडा कर दिया, वहीं ये बारिश शहरियों के लिए जहमत भी बन गई। 37 मिलीमीटर बारिश ने वासा की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। फैसलाबाद की मुख्तलिफ जगह पानी में डूब गई। लारी अड्डा, तारकाबाद, जड़ावाला रोड, झाल चौक और दीगर मेन शाहराहों पर पानी जमा हो गया। बारिश को कई घंटे गुजरने के बाद भी पानी ना निकाला जा सका। लोग जो है वो पानी में से गुजर रहे हैं, गुजरने के लिए जगह नहीं है और वासा की तरफ से कोई इसी किस्म का अभी तक कुछ पानी का निकास का इंतजाम नहीं हुआ। गटर का पानी जो है वो सड़क पे आ रहा है। बारिश तो हो गई, खत्म हो गई, लेकिन बजाय इसके कि ये गटर में जाए पानी और पानी जो है वो खत्म हो, गटर का पानी जो है वो बाहर आ रहा है। बारिशी पानी जमा होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। शहरियों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जब बारिश आती है कोई इंतजाम नाकस, सारा इंतजाम नाकस है। जगह जगह फैसलाबाद में तमाम शहरों में पानी खड़ा है। जंग बाजार, तारकाबाद, समनाबाद और ये लारी अड्डा भी आप देख सकते हैं कि इधर कितने लोगों को परेशानी है गुजरने में। वासा हुकाम की जानब से पानी निकालने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया। शहरियों का कहना है वासा हुकाम पानी की निकासी को मुमकिन बनाने के लिए इकदाम करे। कैमरामैन शाहजेब के साथ शाहदा परवीन, फैसलाबाद। चिन्योट में गल्ला मंडी का अहाता तालाब का मंजर पेश करने लगा। मकई की बोरियां बारिशी पानी में डूबने से सैकड़ों टन मकई खराब होने का खतरा पैदा हो गया। किसानों को करोड़ों का नुकसान हो सकता है। चिन्योट इंतजामी की मुबैना गफलत से किसानों को करोड़ों का नुकसान होने लगा। गल्ला मंडी में बारिश का पानी तालाब की शक्ल इख्तियार कर गया, जिसमें सैकड़ों मकई की बोरियां डूब गईं। मंडी में जहां सीवरेज का निजाम दरम बरम था, वहीं बारिश ने इंतजामी की नाकिस कारकर्दगी का पर्दा भी चाक कर दिया। मकई की बोरियां गीली होने से किसान शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। सर ये देखिए कितना पानी खड़ा हुआ, कोई इंतजामिया मसले का है, इतने सैकड़ों टन ये मकई या गंदम खराब हो रही है तो कोई आ नहीं रहा। ये सारी सूरत हाल देख सकते हैं। इंतजामिया बिल्कुल ही यहाँ फजूल है, उन्होंने कोई काम नहीं है, बल्कि सारा पानी जो है ना, मैं समझता हूँ चिन्योट का सारा पानी गल्ला मंडी में इकट्ठा है। किसानों और आड़तियों ने इंतजामिया से मंडी के अहाते से गंदे पानी के निकासी और अहाता वसी करने का मुतालबा कर दिया ताकि मुश्किलात का सामना न करना पड़े। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। फैसलाबाद में बारिशों की वजह से टिड्डी दल का खतरा बढ़ने लगा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवां बरस बारिशें 10% ज्यादा हो सकती हैं, जिस वजह से टिड्डी दल को तल्फ करने में भी मुश्किलात का सामना हो सकता है। अब्दुल रहमान की रिपोर्ट देखिए। मानसून की बारिशों की वजह से फसलों को नुकसान पहुंचने के खदशात बढ़ गए हैं। टिड्डी दल के तदारुक के लिए महकमा ज़राअत की जानिब से इकदामात का सिलसिला जारी है। मुतासरा मकामात पर स्प्रे किया जा रहा है। ये एक जगह से दूसरी जगह हरकत करता रहता है, तो जैसे ही ये पंजाब में ये राजनपुर का इलाका है वहाँ से ये दाखिल हुआ जो पिछले साल था, तो ये फिर जहाँ जहाँ भी ये जाता था तो हमारी टीमें साथ साथ रहती थी और जब ये रात को जहाँ भी ये टिड्डी दल बैठती थी उसके ऊपर फौरन स्प्रे करते थे। डीजी ज़राअत रिसर्च डॉक्टर आबिद महमूद का कहना था कि पंजाब में महकमा रिसर्च और तोसी ने अच्छे इकदामात किए हैं जिनकी वजह से नुकसान कम होगा। उन्होंने किसानों पर भी जोर दिया कि जहाँ भी टिड्डी दल के हमले की इतलाआत हो महकमे को फौरी बताया जाए। हमारी जो महकमा ज़राअत है, हमारी रिसर्च की टीम में, एक्सटेंशन की टीम में, ये बिल्कुल तैयार हैं और इसके लिए इंशाअल्लाह हम जो भी जो हो सकता है। बहरहाल अभी तक पंजाब के अंदर कोई सिग्निफिकेंट इसने किसी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाया है। टिड्डी दल के हमलों से अरबों रुपए की फसलें जाया होने की इत्तलाआत हैं, जिसका मुस्तकिल तदारुक ना होने की सूरत में ग़ज़ाई बहरान पैदा हो सकता है। कैमरामैन मोहम्मद वक्कास के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद।
एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन कमिश्नर फैसलाबाद की ज़ेर सदारत ईद उल अज़हा और इंक्रोचमेंट के सिलसिले में मीटिंग हुई, जिसमें ईद उल अज़हा के हवाले से भी इक़दाम करने के बारे में बातचीत की गई। कमिश्नर इशरत अली ने कहा कि जहां बारिशों का पानी जमा है वहां से फौरी तौर पर वाटरिंग सेट की मदद से पानी निकाला जाए। इसके लिए भी वासा अपना किरदार अदा करे। बारिश के वक्त डिस्पोजल स्टेशंस को बरवक्त चलाया जाए, रिहायशी इलाकों से पानी जल्द निकाला जाए। कमिश्नर इशरत अली ने कहा कि तमाम महकमे अपने फील्ड स्टाफ को मुतहर्रिक करें। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, सब्जियों और फलों की कीमतों को पड़ लग गए। फैसलाबाद और चिन्योट की सब्जी मंडी में कीमतों में इजाफा कर दिया। आलू 70 रुपए से बढ़कर 80 रुपए, फूल गोभी 60 से बढ़कर 70, अरवी 80 से 90 रुपए किलो की हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद सब्जियों और फलों की कीमतों को भी पड़ लग गए। फैसलाबाद में हर सब्जी और फल के रेट में 5 से 10 रुपए किलो इजाफा कर दिया गया। फैसलाबाद में आलू 7 रुपए इजाफे के साथ 72 रुपए, मटर 10 रुपए इजाफे के साथ 130 रुपए, फूल गोभी 5 रुपए इजाफे के बाद 95, सब्ज धनिया 7 रुपए इजाफे के बाद 130 में बिकने लगा। फलों में आड़ू 150, फालसा 10 रुपए इजाफे के बाद 150 और आलू बुखारा 12 रुपए इजाफे के साथ 320 रुपए, केला 120 रुपए दर्जन, जबकि सेब 230 रुपए किलो तक पहुंच गया। उधर चिन्योट में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। जारी करदा नुकनामे के मुताबिक आलू 70 से बढ़कर 80, जबकि प्याज 30 से 35, टमाटर 48 से 55, अदरक 270 से 290 और लहसुन 140 से 150 रुपए किलो तक बिकने लगा। महंगा हो रहा है चीज, पेट्रोल भी महंगा है, सब्जी भी महंगी है, 10-20 रुपए सब्जी ऊपर चढ़ गई है। इसमें हमें जो है ना इंसाफ चाहिए। शहरियों की जानिब से जिला इंतजामिया से सब्जी और फलों की कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा किया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यकमुश्त 25 रुपए तक का इजाफा अवाम पर महंगाई के नए दौर का आगाज कर दिया। महकमे ट्रांसपोर्ट किरायों का तयन करने में नाकाम है। फैसलाबाद डिवीजन के ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया है। तेल की मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने महंगाई का नया बाब खोल दिया। फैसलाबाद के ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया। फैसलाबाद से मुल्तान का किराया 70 रुपए इजाफे के बाद 590 रुपए हो गया। लाहौर के किराए में 100 रुपए का इजाफा, इस्लामाबाद का किराया 1020 तक पहुँच गया। लोकल ट्रांसपोर्ट में गोजरा के किराए में 20 रुपए, टोबा के 30, जबकि जंग के किराए में 30 रुपए का इजाफा कर दिया गया। तेल ज्यादा होया ते नाल ही किराया वध गया ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਘਟਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਰਾਇਆ ਘਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, नहीं घटे। चिन्योट के ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में 10 से 15% इजाफा कर दिया। चिन्योट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी तो ट्रांसपोर्टर्स ने 10 से 15% तक किराया बढ़ा दिया। चिन्योट से फैसलाबाद का किराया 50 से 60, झंग का 130 से 150, लाहौर का 350 से 400 और सरगोदा का 75 से 90 रुपए कर दिया गया। इसी तरह रावलपिंडी, गुजरावाला, सियालकोट और दीगर शहरों को जाने वाली बसों और वैगन मालिकान ने 15% तक किराए बढ़ा दिए हैं। हम जो है मुलाजिम पेशा लोग हैं, जो पहले जो 50 रुपए 45 रुपए लेते थे, अब पेट्रोल बढ़ने की वजह से 60 रुपए ले रहे हैं, तो गरीब आदमी के पहुंच से दूर है हर चीज। उधर टोबा में भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ताहाल किराए का तयन न कर सका। गाड़ी मालिकान मनमाने किराए वसूल करने लगे। टोबा से फैसलाबाद का किराया 220 रुपए तक वसूल किया जाने लगा। टोबा से लाहौर का 600 रुपए से बढ़ाकर 640 रुपए किराया कर दिया गया। इसी तरह टोबा से शोरकोट का 70 रुपए, टोबा से कमालिया तक का सफर 50 रुपए, टोबा से झंग का भी 70 रुपए किराया वसूल किया जा रहा है। मुसाफिरों की जानिब से फौरी तौर पर गाड़ी पर किराए की लिस्ट आवेजा करने की अपील और जायद किराया वसूल करने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। और झंग में पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में इजाफे से ट्रांसपोर्टर्स भी परेशानी का शिकार हैं। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से हुकूमती रिलीफ का मुतालबा किया गया है। अवैस खान की रिपोर्ट देखिए। झंग में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से भी शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि कोरोना इमरजेंसी के SOPs और डीजल की कीमतों में इजाफे से ट्रांसपोर्ट चलाना दुश्वार हो गया है, जिसके बायस शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बावजूद किराए में इजाफा नहीं किया गया। मोबिल ऑयल और टायरों की कीमतों पर भी कोई रिलीफ हासिल नहीं। ट्रांसपोर्टर्स का मजीद कहना था कि SOPs के तहत 44 सीटर बस में 22 सवारियां बिठा रही हैं। ये पेट्रोल यास की मसूलियात में ज़्यादा होने की वजह से क्योंकि ट्रांसपोर्टरों को बहुत बोझ पड़ गया, क्योंकि किराए की कमी है
तो डीजल और पेट्रोल बढ़ चुका है और एसएसपी के 22 सवारी बिठानी होती है, वो इसके लिए हमें तो बहुत से मसाइल हैं। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से मुतालबा किया गया कि फौरी डीजल की कीमतों में कमी की जाए ताकि उनको दरपेश मसाइल खत्म हो सकें। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 छन। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से तमाम शोबों की जानिब से हुकूमत पर तनकीद का सिलसिला जारी है। फैसलाबाद में रिक्शा ड्राइवर्स भी पेट्रोल में इजाफा होने से नाला नजर आते हैं। फौरी तौर पर इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा तमाम शोबों में बम की तरह गिरा है। रिक्शा ड्राइवरों का कहना है कि पेट्रोल महंगा है जबकि सवारी ज्यादा किराया अदा नहीं कर रही है। स्टॉप टू स्टॉप किराया 20 रुपए हो तो दिहाड़ी बन जाती है, 10 रुपए में तो रिक्शे का ऑयल ही पूरा नहीं होता। पेट्रोल महंगा है तब भी किराया यही है ना, जब कम होता है हर कोई कहता है कम करें किराया कम करें, जब अब ज्यादा हुआ है तो अब कोई भी नहीं सर उठा रहा, ना गवर्नमेंट ना कोई। सवारियों के साथ साथ लोडर रिक्शा चलाने वाले भी कीमतें ज्यादा होने से परेशान नजर आए। लोडर रिक्शा ड्राइवर्स का मौक़िफ़ है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने से तो उनकी अच्छी आमदन हो जाती थी, मगर इन दिनों में वो मुश्किलात का शिकार हैं। हुकूमत को चाहिए कीमतें इस सतह पर ही रखे जहां आवाम बर्दाश्त कर सके। तेल दे खर्चा पूरा करके सवारी को किराया पूरा दिन नहीं आगे 10 रुपए किराया 20 रुपए किराया कुछ साडे गल पैंदी है कि महंगाई है। मैं कुछ साडी बात महंगाई है, असी खाना कितों इन्नी महंगाई हुई फिरदी। शहरियों का कहना था कि जिले इंतजामिया को स्टॉप टू स्टॉप किराया खुद तय करना चाहिए ताकि बेवजह बदमज़गियों से बचा जा सके। कैमरामैन मोहम्मद वक्कास के साथ अब्दुल रहमान, फैसलाबाद। आगे बढ़े, आपको बताएं कि कोयले की कीमतों में 6,000 रुपए टन इजाफा कर दिया गया। कीमत 12,000 से बढ़कर 18,000 रुपए कर दी गई। भट्टा मालिकान एसोसिएशन और मजदूर तहरीक की डायरेक्टर लेबर से मुलाकात हुई। डायरेक्टर लेबर ने फरीकैन के तहफ़्फ़ुज़ात सुने। इसी हवाले से शरास भट्ट की रिपोर्ट देखिए। मजदूर का चूल्हा बंद होने का खदशा पैदा हो गया। कोयले की कीमतों में 6,000 रुपए टन का इजाफा हुआ तो मालिकान ने भट्टे बंद करने का ऐलान कर दिया। भट्टा मालिकान और मजदूर यूनियन ने डायरेक्टर लेबर को मसाइल से आगाह किया। मजदूरों के नुमाइंदा बाबा लतीफ ने कहा कि मजदूर की तनख्वाह बढ़ाने का वक्त था, ऐसे में भट्टे बंद कर देना मेहनत कशों का मुआशी कत्ल है। मालकान तो परेशान, लेकिन मालकान से तो अपनी ईंट महंगी कर लेंगे, लेकिन जब भट्टा बंद होगा तो मजदूर को तो वो कर्ज चढ़ेगा। वो पहले ही लाखों रुपए के मकरूज हैं, जबरी मशक्कत शिकार हैं, बारिशों की वजह से मकरूज हुए हुए हैं। अब उनके ऊपर कर्ज दर कर्ज होता चला जाएगा। हुकूमत को इस पर कोई पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि मजदूरों को कोई पैकेज दें। फैसलाबाद लेबर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर मलिक मुनव्वर अवान ने यकीन दहानी करवाई है कि भट्टे बंद होने की सूरत में भी मजदूर की उजरत नहीं रोकी जाएगी। वर्कर को खदशात हैं कि वो बेरोजगार हो जाएंगे, जिस पर उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि ये मजदूर हमारे हैं। हमने पहले भी कोविड-19 के हवाले से जो सूरत हाल बनी थी इनसे माली मुआवनत की है, इनसे तावन में रहे हैं, अभी इन्हें बेयारो मददगार नहीं छोड़ेंगे। कोयले की कीमत 12 से 18,000 रुपए टन तक जा पहुंची। फैसलाबाद के 4,000 रजिस्टर भट्टे बंद होने से ईंट की कीमत समेत कंस्ट्रक्शन का कारोबार मुतासिर होने का खदशा है। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। राना सनाउल्लाह ने मुल्क में फौरी नए मिड टर्म इंतखाबात का मुतालबा कर दिया है। अपने वीडियो पैगाम में राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मुल्क इंतहाई गंभीर हालात से दो चार है। मुल्क की मईशत और आम आदमी का बुरा हाल है। मिड टर्म इलेक्शन ही मौजूदा हालात का वाहिद हल है। अवाम नए हुक्मरान का इंतखाब करें। राना सनाउल्लाह ने मुल्क में फौरी नए मिड टर्म इंतखाबात का मुतालबा कर दिया है। मुल्क इंतहाई गंभीर हालत से दो चार है। सदर नून लीग पंजाब राना सनाउल्लाह ने ये कहा। उन्होंने कहा कि मुल्क की मईशत और अवाम आदमी का बुरा हाल है। मिड टर्म इलेक्शन ही मौजूदा सूरत हाल का वाहिद हल है। मुल्क जिन गंभीर हालात में गिर चुका है, जो इस वक्त आम आदमी का और जो इस वक्त मुल्क की इकॉनमी का जो हशर हो चुका है, ओनली फ्रेश मैंडेट जो है वो मुल्क को इस सूरत हाल से जो है वो निकाल सकता है। कि मुल्क अभी आपको बताएं कि तांदियावाला में एहसास किफालत सेंटर के इंतजामात बदनस्मी का शिकार हो गए। मर्द और खातिन ख्वार होने लगे। रिटेलर्स काउंटर्स पर तैनात सरकारी टीचर्स भी ड्यूटी से गायब हो गए। इस हवाले से गुलरेज इकबाल की रिपोर्ट देखिए। तांदियावाला में डिविजनल पब्लिक स्कूल के एहसास कफालत सेंटर के इंतजामात बदनस्मी का शिकार हो गए। रिटेलर काउंटर्स पर तैनात सरकारी टीचर्स भी ड्यूटी से गायब हो गए। इंतजामिया ने मुस्तहकीन को रिटेलर्स के रहमो करम पर छोड़ दिया। रिटेलर्स की मनमानियां जारी हैं। सेंटर में रकम लेने आए मर्द खवातीन ख्वार होने लगे। कफालत सेंटर में रकम लेने आई खवातीन धूप में बैठने पर मजबूर हैं। हमें 2 घंटे हो गए इधर आए हुए, इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों के साथ आए हुए हैं, इतनी गर्मी लग रही है, हवा से सांस घुट रहा है, पानी भी कोई नहीं है, चेयर
घर भी कोई नहीं है, थक गई हूँ। कफालत सेंटर में पीने के पानी की सहूलत मौजूद, न कोरोना SOPs पर अमल दरामद किया गया। मुस्तकीन ने हुक्काम से कफालत सेंटर की हालत पर नोटिस लेने की अपील की। कैमरा टीम के साथ गुलरेज इकबाल, सिटी 41 तांगियावाला। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर कौमी खुशहाली सर्वे के तहत चिन्योट के 30,000 घरानों का सर्वे किया गया। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर आमिर लाली कहते हैं कि हुकूमत लोगों का मयार जिंदगी, तालीमी और मुआशी हालात जांचने के लिए सर्वे करा रही है। चिन्योट में वज़ीर आज़म की हिदायत पर नेशनल सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री के ताउन से कौमी खुशहाली सर्वे जारी है, जिसमें अभी तक 30,000 घरानों का सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर आमिर लाली कहते हैं कि लोगों का मयार जिंदगी, तालीमी और माशी हालात जांचने के लिए हुकूमत सर्वे करवा रही है, जबकि सर्वे की मालूमात की बुनियाद पर हुकूमत के मुख्तलिफ समाजी प्रोग्राम्स मसलन के वतन कार्ड, खिदमत कार्ड, सेहत कार्ड, इंसाफ कार्ड, बेनजीर कार्ड समेत दीगर हकदार घरानों का तयन किया जाएगा। तकरीबन हमने 30,000 जो घराने हैं डिस्ट्रिक्ट चिन्योट के, वो हमने कवर कर लिए हैं। तकरीबन डेली 1,000 के करीब हम जो घराने हैं उनका सर्वे कर रहे हैं, उनकी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, और ये आहिस्ता आहिस्ता GPS के जरिए जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए हम पूरे चिन्योट को कवर कर रहे हैं। उनका कहना है कि जदीद टेक्नोलॉजी के साथ लोगों का रहन सहन, मयार जिंदगी पर सर्वे किया जाएगा, जिसमें बिजली, पानी, सुई गैस, सेहत, तालीम, इंसाफ, रोजगार समेत 72 सवालात पर मुश्तमिल परफॉर्मा फिल किया जाएगा। सर्वे के बाद रिहायशियों को सहूलत की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी, ताहम शहरी सिर्फ अपना शनाख्ती कार्ड अपने पास रखें। सर्वे टीमें घर घर जाकर उनका डाटा इकट्ठा करेंगी। सूबाई वजीर बराए स्कूल एजुकेशन मुराद रास ने पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की जानिब से बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का योम विलादत की तारीख गलत प्रिंट करने पर एक्शन लिया। पंजाब टेक्स्ट बोर्ड के इशाद करता किताब सरमाया उर्दू पर फौरी पाबंदी आयद कर दी और 7 रोज में तमाम स्कूलों से किताबें वापस मंगवाने का भी हुक्म दे दिया। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि इस बुक में जो प्रिंटिंग है वो गलत हो गई थी और 1976 जो है वो बाबाए कौम की पैदाइश का साल लिख दिया गया था और अब इस पर एक्शन लिया गया है। सूबाई वजीर बराए स्कूल एजुकेशन मुराद रास ने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से इरशाद करदा किताब सरमाया उर्दू पर फौरी पाबंदी आयद कर दी है। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का सिंडिकेट इजलास हुआ। 2020-21 के लिए 10 अरब रुपए से ज़ायद के मुजव्वज़ा बजट की मंजूरी दे दी गई। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ की जेर सदारत सिंडिकेट मीटिंग हुई। माली साल 2020-21 के लिए 10 अरब रुपए से जायद के मुजव्वज़ा बजट की मंजूरी दी गई। HEC की तरफ से 2 अरब रुपए, तरक्याती फंडिंग 3 अरब रुपए, रिसर्च ग्रांट्स 3 अरब रुपए और यूनिवर्सिटी का अपना रेवेन्यू 2 अरब रुपए शामिल हैं। टिड्डी दल के मौसर तदारुक के लिए शोबा एंटोमोलॉजी में लोकस्ट रिसर्च और डेवलपमेंट सेल, जबकि शोबा एग्रोनॉमी में ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर सेल के क़याम की बाज़ाब्ता मंजूरी दी गई। एकेडमिक काउंसिल के गुज़िश्ता इजलास में किए जाने वाले फैसलों की मंजूरी भी दी गई। सब कैंपस बुरेवाला के लिए अंडर ग्रेजुएट सतह के नए प्रोग्राम्स, सब कैंपस देपालपुर ओकाड़ा में BS कंप्यूटर साइंस और BS मैथ्स के 4 साला प्रोग्राम, जबकि टोबा सब कैंपस में BSc एनिमल साइंसेज के डिग्री प्रोग्राम शुरू करने की मंजूरी दी गई। मीटिंग में रजिस्ट्रार उमर सईद कादरी, मिस्टर जस्टिस अली बाकर नजफी, प्रोफेसर डॉक्टर नासिर अमीन, चौधरी मोहम्मद अशफाक, प्रोफेसर डॉक्टर अशफाक अहमद चट्ठा, प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अहमद रंधावा, प्रोफेसर डॉक्टर फरजाना रिजवी, डॉक्टर अब्दुल नासिर आवान, एहसन रजा सत्तार, डॉक्टर मिसबा एजाज, डॉक्टर अतिया आवान, लोकल फंड ऑडिट से अब्दुल रऊफ, एडिशनल सेक्रेटरी ज़राअत उबैदुल्लाह और डॉक्टर इकबाल शाहिद ने शिरकत की। फैसलाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन के मुस्बत असरात। 15 रोज के दौरान कोरोना वायरस के 5% मरीजों की तादाद में कमी हुई है। महकमे सेहत के मुताबिक लॉकडाउन से कबल 15 रोज के दौरान 58 अमवात हुई, ताहम लॉकडाउन के दौरान 27 अफराद जाँ बहक हुए। हॉटस्पॉट वाले इलाके 29 से कम होकर 9 रह गए। इनमें डी टाइप कॉलोनी, मदीना टाउन और पीपल्स कॉलोनी समेत दीगर इलाके शामिल हैं। महकमा सेहत ने जिला इंतजामिया को रिपोर्ट पेश करती है। कमिश्नर इशरत अली की जिला इंतजामिया और पाक आर्मी के अफसरान से मीटिंग हुई। कोरोना के मौजूदा सूरत हाल, जारी इकदाम और जेर इलाज मरीजों के हवाले से बातचीत की गई। मीटिंग में RPO राजा रिफत मुख्तार, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली, वाइस चांसलर फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर जफर अली चौधरी, DHO डॉक्टर बिलाल अहमद, मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। कमिश्नर ने कहा कि कोरोना वायरस के कन्फर्म मरीजों की इलाज मुआलजे पर मामूर डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की सेहत का हर मुमकिन ख्याल रखा जाए। उन्हें
उन्होंने हिफाजती सामान किट्स की फराहमी में रुकावट नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कोरोना वायरस के फैलाव की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग ली। डिप्टी कमिश्नर ने इंसदाद कोरोना इक़दाम और स्मार्ट लॉकडाउन से भी आगाह किया। आपको बताएं कि मीटिंग में आरपीओ राजा रिफत मुख्तार, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली, वाइस चांसलर फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर जफर अली चौधरी, डीएचओ डॉक्टर बिलाल अहमद, मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। कमिश्नर ने कहा कि कोरोना वायरस के कंफर्म मरीजों के इलाज मुआलजे पर मामूर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की सेहत का हर मुमकिन ख्याल रखा जाए। झंग पुलिस ने चोरों और डाकुओं के 12 गिरोहों के 41 अरकान पकड़ लिए। गिरफ्तार किए गए अक्सर मुल्जिमान इश्तिहारी थे। मुबशिर हसन नकवी की रिपोर्ट देखिए। शहरियों से लूटमार की बढ़ती वारदातों के बाद डीपीओ डॉक्टर गियास गुल खान ने टीमें तश्कील दी, जिन्होंने जिला से चोरी डकैती में मुलव्वस 12 गिरोह पकड़े। शहर में मोटरसाइकिल चोरी और छीनने की वारदातें बढ़ी तो चौकी अलीबाद पुलिस ने गिरोह को पकड़कर 9 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली। डीपीओ साहब ने स्पेशल हमें टास्क दिया कि ये मोटरसाइकिल गैंग पकड़ा जाए, तो इस सिलसिले में हमने दिन रात मेहनत करके मोटरसाइकिल गैंग पकड़ा, जिसमें 4 बंदे गिरफ्तार किए हैं। गढ़मराजा में एक ही रात में डकैती की 2 वारदातों में शहरी की टांगों पर गोलियां मारी गईं और 12 लाख रुपए छीन लिए गए, जिस पर पुलिस ने 4 डाकू गिरफ्तार करके नकदी और असलाह बरामद कर लिया। थाना गढ़मराजा के इलाके में 2 वारदातें हुई रात को 10 बजे के करीब। दोनों में उन्होंने डकैती की, एक में 5 लाख रुपए ले गए और दूसरे में भी 5 लाख रुपए 70,000 ले गए। उसमें उन्होंने एक मुद्दई को फायर भी मारा। डीपीओ गियास गुल की टीम ने मजमूई तौर पर 41 मुल्जिमान गिरफ्तार किए, उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए। उनसे चोरी, डकैती, राहजनी की वारदातों में लूट मार की गई नकदी और नाजायज असला बरामद कर लिया। ये टोटल जो हमने है इसमें कैश भी है, ज्वेलरी भी है और मवेशी हैं, जिसमें बकरियां हैं, भैंसें हैं, गायें हैं और इसके अलावा कोतवाली वालों ने जो है वो एक मोटरसाइकिल गैंग जो है वो बस्ट किया है, उसके में से 8 मोटरसाइकिलें जो हैं वो रिकवर्ड हैं। डीपीओ गियास गुल ने शहरियों को मोटरसाइकिल और नकदी उनके हवाले की। पुलिस कारकर्दगी को सराहते हुए अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की भी हदायत की गई। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशिर हसन नकवी, सिटी 41 झंग। कारकर्दगी दिखाओ, इनाम पाओ। डीपीओ चिन्योट ने जिला भर के एसएचओज, तफ्तीशी अफसरान, ट्रैफिक पुलिस, एलीट फोर्स और लेडी कांस्टेबल समेत 200 मुलाजमीन में 8 लाख रुपए के चेक तकसीम किए। डीपीओ दफ्तर चिन्योट में तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चिन्योट सैयद हसनैन हैदर ने एसपी इन्वेस्टिगेशन मैडम कौसर परवीन के हमरा अच्छी कारकर्दगी पर पुलिस अफसरान और अहलकारों में तारीफी सर्टिफिकेट्स और नकद इनाम तकसीम किए। एसएचओ, सब इंस्पेक्टर, एएसआईज, लेडी पुलिस, एलीट फोर्स, ट्रैफिक स्टाफ, कांस्टेबल समेत 200 से ज्यादा पुलिस अफसरान और एहलकारों में 8 लाख रुपए के चेक तकसीम किए गए। मचियाना में देरीना दुश्मनी पर मुखालफिन ने मुसाफिर वैन रोक कर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग की जद में आकर 5 मुसाफिर जाँ बहक जबकि 4 शदीद जख्मी हो गए। मरने वालों में एक ही घर के 3 अफराद की नमाज जनाजा अबाई गांव में अदा कर दी गई। वाला से मुसाफिर वैगन ननकाना जा रही थी। जब वैगन 562 जफरवाल के करीब पहुंची तो पीछे से आने वाली मोटरसाइकिल सवार ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसकी जद में आकर बचियाना का रिहायशी वैगन ड्राइवर सजावल और नवाही गांव चक 563 शर्की के 2 हकीकी भाई अब्दुल रऊफ अदरीस और उनका भांजा हुसैन और आरिफ मौके पर जाँ बहक जबकि 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मी होने वालों में मोहम्मद अकरम, अशरफ, खलील और कासिम शामिल हैं। रेस्क्यू टीम ने उन्हें डीएचक्यू अस्पताल ननकाना मुंतकिल कर दिया। मरने वाले एक ही घर के 3 अफराद की नमाज जनाजा 563 में अदा कर दी गई। तक पुलिस की कार्रवाई है कि अपना जो इकराम बाबर है वो गिरफ्तार है। गिरफ्तार हो गए? हाँ जी, गिरफ्तार हो गए और एक मजदूर गिरफ्तार हो गया। ये सही नहीं, ये सही जो बाबर है इकराम बाबर वो गिरफ्तार कर दिए। मकतूलैन के वालिद का कहना था कि पुलिस ने हमारे साथ मुकम्मल ताउन किया, 2 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मुकाबला ही करांगे जी, साडे ने बहुत ज्यादती की है। पुलिस ताउन कर रही है? बहुत ताउन कर रही है। ठीक है, ठीक है। हुकूमत ने मुतालबा ये कर रहे हैं भी इन्होंने फाड़ के जिथे जेड़े इन्होंने मारे ने इन्होंने फाड़ के सामने गोली ठोकण, बस गल मुकी। पुलिस ने मकतूल अदरीस और अब्दुल रऊफ के भाई और मकतूल हसनैन के मामू नदीम अब्बास की मदीयत में 7 नामजद और 5 नामालूम अफराद के खिलाफ कत्ल और इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है। दिलखराश वाक़े पर इलाके में हर आंख अश्तबार और शोक की फिजा कायम है। कैमरा टीम के हमरा राना एहसान, सिटी 41 बचियाना। थाना लुडियावाला के इलाके में मुसाफिर वैन को रोककर फायरिंग करने का मामला।
सीपीओ सुहेल चौधरी ने जड़ावाला एसपी दफ्तर का दौरा किया। गुज़श्ता रोज नामालूम अफराद ने मुसाफिर वैन रोककर फायरिंग कर दी थी, जिसकी जद में आकर 5 अफराद मौके पर जमा हो गए थे। सीपीओ सुहेल चौधरी ने जड़ावाला एसपी दफ्तर का दौरा किया। सीपीओ ने कहा कि जदीद साइंसी तरीके और ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए मुल्ज़िमान को तलाश किया जा रहा है। एसपी जड़ावाला और एएसपी अपनी टीम के हमरा काम कर रहे हैं। हर पहलू से केस का जायजा लिया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि जल्द मुल्ज़िमान सलाखों के पीछे होंगे। एडमिनिस्ट्रेटर जनरल बस स्टैंड फैसलाबाद असिस्टेंट कमिश्नर उमर मकबूल ने बस स्टैंड को कमाओ पुत बना दिया। ये रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद का जनरल बस स्टैंड कमाओ पुत बनने लगा। एडमिनिस्ट्रेटर जनरल बस स्टैंड एसी उमर मकबूल के मुताबिक बड़े ठेकेदारों को नीलामी में शामिल किया, जिससे नीलामी 3 गुना हो गई। रिक्शा स्टैंड का 18 से 19 लाख वाला ठेका 56 लाख तक जा पहुंचा। उन्होंने कहा कि दीगर ठेका जात के जरिए इस महकमे को भी मुनाफा बख्श बना रहे हैं। पर्ची वाला है जिसमें वहाँ पे वॉशरूम्स का है, चारपाई का है और रिक्शा वगैरह का है। तो अभी तक हमारा जो एक ठेका जो है वो कंक्लूड हो रहा है, जो कि रिक्शा वगैरह का है, जो कि पहले तकरीबन 19 लाख का था और इस दफ़ा जो है उसकी बिड जो है वो 56 लाख तक पहुंच गई है। एसी सदर उमर मकबूल के मुताबिक मिस्टर अली के नाम से होने वाला ठेका कागजी कार्रवाई के लिए सेक्रेटरी आरटीए और फिर डीसी के टेबल पर जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद।